Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 13, part 4, organ specific and tissue specific manifestation, अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति. The disease crushing microbes enter the body through their different means. Where do they go then? The body is very large when compared to the microbes, so there are many possible places, organs or tissue where they could go. Do all microbes go to the some tissue or organs, or do they go to different ones? विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और वह कहाँ जाते हैं. सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं. क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग तथा अथवा ऊतक में जाते हैं अथवा वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं. डिफरेंट स्पीसीज of microbes seem to have evolved to home on different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. If they enter from the air, the nose, they are likely to go to the lungs. सूक्ष्म जीव में विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं. ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है. यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़े में जाएंगे. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया क्रशिंग ट्यूबरक्लोसिस. इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड crushing bacteria, or they can go to the liver like the viruses that cause jaundice. अब ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है. यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो ये आहार नाल में रहेंगे, जैसा टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, अथवा यह यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक हैं. But this needed always be the case. And infection like HIV that comes into the body, the sexual organ will spread to lymph nodes all over the body. Malaria crushing microbes entering through a mosquito bite will go to the liver and then to go to the red blood cells. The virus crushing Japanese splenthis or brain fever will similarly enter through a mosquito bite, but it goes on to infect the brain. लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता. HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है. मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वह यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं. इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वार उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है. In addition to these tissue-specific effects of infectious disease, there will be other common effects too. Most of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. This recruitment process is called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain, and general effects such as fever. जिस ऊतक अथवा अंग
पर सूक्ष्म जीव आक्रामक करते हैं। रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी तथा कम सांस आना होंगे। यदि आकृति पर आक्रामक होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होगा तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना होगा। यदि हम यह जानते हो कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है तो उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण के अनुमान लगा सकते हैं। In some cases, the tissue specificity of the infection lead to very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damages its functions. Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. Instead, every small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. Ultimately, it is these other infections that kill people suffering from HIV/AIDS. अब संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को सोग्र कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। कुछ मामलों में संक्रामक के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण HIV संक्रामक में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में आ जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार HIV/AIDS से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों को मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रभाविका हो सकता है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही HIV/AIDS के रोगी को मृत्यु के कारण बनते हैं। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द severity of disease manifestations depend on the number of microbes in the baby. If the number of microbes is very small, the disease manifestations might be minor or unnoticed. But if the number is of the same microbe large, the disease can be severe enough to be life-threatening. The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. We shall look into this aspect a little later in the chapter. हम यदि स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता को अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्मजीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्मजीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्मजीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इसी विषय में हम इस अध्याय के अंत में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार के नियम। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक? हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम? व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स? जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं?
Based on what we have learnt so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. One would be to reduce the effects of the disease, and the other to kill the causes of the disease. For the first, we can provide treatment that will reduce the symptoms. The symptoms are usually because of inflammation. For example, we can take medicines that bring down fever, reduce pain, or lose motion. We can take bed rest so that we can conserve our energy. This will enable us to have more of a available to focus on healing. जब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोग के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दे और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दे। पहले उपाय के लिए ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण सिम्टम कम हो जाएं। लक्षण प्रायः शोथ के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द और दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। But this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infecting microbe go away, and the disease will not be cured. For that, we need to be able to kill off the microbes. लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमें सूक्ष्मजीवों को मारना ही पड़ेगा। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? One way is to use medicines that kill microbes. We have seen earlier that microbes can be classified into different categories. They are virus, bacteria, fungi, or protozoa. Each of these groups of organisms will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other groups. These processes might be pathways for the synthesis for new substance or respiration. हम सूक्ष्मजीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्मजीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। यह वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई अथवा प्रोटोजोआ जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस प्रकार वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। यह प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। द pathway will not be used by us either. For example, our cells might make new substance by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacteria synthesis pathway without affecting our own. This is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite. इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसे औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सकें। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। One reason why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicines is that viruses have few biochemical mechanisms of their own. They
enter our cell and use our machinery for their life process. This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. Despite these limitations, there are now effective antiviral drugs. For example, the drugs that keep HIV infection under control. एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रामक करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि होती है। थैंक यू।